students, today we are going to study about one of the last chapters of business class 12th. Okay, so let's get started with that. What is Consumer Protection Act? Okay, as you know, there is a relation between the seller and buyer in every type of country. So to protect the needs of the customer, the Consumer Protection Act was found, and it was formed in 1986. Okay, so So, Consumer Protection Act has been implemented in 1986. Now, this is very important for 1 marks question. Okay, as well as definition is important for 5 marks question also. Or we can bring into existence to protect. Why? To protect the right of the consumer. It protects the consumer from exploitation दैट बिजनेस प्रैक्टिस टू मेक प्रॉफिट्स. ये लोगों को बचाती है कि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, जो लोग बिजनेस मैन्स करते हैं अपना प्रॉफिट बनाने के लिए, विच इन टर्न हार्म द वेल बींग ऑफ द कंज्यूमर एंड सोसाइटी. ठीक है, जो ये लोग प्रॉफिट बनाते हैं उससे क्या होता है, द बिजनेस मैन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हार्म द कंज्यूमर वेल बींग and do not do the business with the fair means. This right help to educate the customer. What the Consumer Protection Act do? It educates the consumer on the right and the responsibility of being a consumer and how to seek help or justice when faced exploitation as a consumer. Okay, so this you what it usually do, it educate or provide knowledge to the consumers, what are their rights and what are their responsibility as a consumer, and how they have to seek justice. Okay, how they have to seek justice when the businessman do exploitation with them. It teaches the consumer to make right choices. Now after getting knowledge, customer will get to know what he should purchase and know what is the right and what is the wrong. Okay, and after that consumer will get to know what is the right thing to do and what is the wrong thing to do. Okay, now who is consumer according to the Consumer Protection Act? As this act is based on the consumer itself, so they define consumer in some different way. So consumer is one that buys goods for consumption and not for the resale or commercial purpose. Who is consumer? Is he is a type of person जो सामान खरीदता है अपना कंज्यूम करने के लिए, ना कि उसको फिर से बेचने के लिए. ठीक है, उसके दो पार्ट्स में इसकी डेफिनेशन डिवाइडेड है. फर्स्ट, एनी पर्सन हु बाय एनी गुड फॉर कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मतलब मनी which has been paid or promised, partly paid or partly promised or under any deferred pay scheme. So here it means कि पेमेंट पहले हो चुका है या प्रॉमिस हुआ है, ये थोड़ा हो चुका है और थोड़ा बाद में देने का प्रॉमिस हुआ है. ठीक है, या फिर पूरा ही बाद में देने का प्रॉमिस हुआ है. इट इंक्लूड्स यूज़र of such goods where use is made with buyer's approval, but does not include person who obtains good for resale. Okay, so it includes the person who is going to consume the good. Okay, but not a type of person who is going to resell. ठीक है, ये जो रीसेल वाले बंदे हैं उसको ये डेफिनेशन बिल्कुल नेगलेक्ट करते हैं. मैंने बताया था ये दो पार्ट में डिवाइडेड है. द सेकेंड पार्ट इज एनी पर्सन हु हायर्स एनी गुड for a consideration which has been paid or promised or partly paid or promised or under any deferred scheme. ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन डील करती है सर्विसेज से. ठीक है, वो होता है गुड्स. फर्स्ट वाला था गुड्स से रिलेटेड, सेकेंड वाला है सर्विसेज से रिलेटेड. ठीक है, तो ये तो पूरा वही है. सेकेंड देखिए, इट इंक्लूड सर्विसेज. ठीक है, और सच गुड्स व्हेन यूज इज मेड विद द बायर्स अप्रूवल बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन्स रीसेल. यहाँ भी उस पर्सन को नहीं इंक्लूड किया जाता है जो रीसेल के लिए गुड खरीदते हैं. स्कोप वैसे पूछा नहीं जाता है, पर डेफिनेशन के साथ आप लिख के आ सकते हैं. स्कोप क्या है? देखिए, मैंने अभी डेफिनेशन में आपको बता दिया, तो आप डेफिनेशन से ही कुछ ना कुछ निकाल के लिख सकते हैं अगर आपको स्कोप ना याद हो तो. वैसे एजुकेटिंग कस्टमर अबाउट द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, उनको स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल कंप्लेन देते हैं. स्पीडी मतलब जल्दी, इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ता, रिड्रेसल माने उनका जो लॉस हुआ है उसका जो पे बैक होता है.
कंप्लेन यानी उनकी कंप्लेन पे। थर्ड है क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग कस्टमर, एंड व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज क्रिएटिंग द awareness among customer, making them learn and giving them knowledge. Next is importance. What is the importance of consumer protection act in terms of consumer? To shape consumer मीन्स टू एजुकेट देम। इंडियन कस्टमर्स आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज, ठीक है, हम लोग को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है इंडियन कस्टमर को और बेचने वाले को, ठीक है, इसलिए हम लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं। इम्पार्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो हमको मिलती रहनी चाहिए, इसलिए ये एक्ट बना है। मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर इज़ क्लूलेस, कई कंज्यूमर को कुछ पता ही नहीं होता है, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है उनके प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, इसीलिए वो कई बार वो चीज़ खरीद लेते हैं जिससे उसको लॉस होता है। फिज़िकल सेफ्टी, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट जो है पुराने होते हैं, दैट इज़ अडल्ट्रेटेड, और कई बार उसके कंजप्शन से कंज्यूमर की जो हेल्थ है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है, तो वो भी देख के लेना चाहिए। एवर्ट मोनोपोली, इरिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं लेकिन फिर भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ये एक्सप्लॉयटेशन और मोनोपोली फॉलो करते हैं, ठीक है, जिसमें कंज्यूमर आ जाता है जिससे उसको बचाना है। मैल प्रैक्टिसेस, गलत हरकतें, company pursue biased trade practices and unlawful trade practices and this protection plays a crucial role, ठीक है, तो कंपनी जो है कई कबार गलत ट्रेड, बहुत महंगे ट्रेड कर देती है जिसकी वजह से कंज्यूमर एक्सपर्ट हो जाते हैं और उनको वो गुड्स खरीदने पड़ जाते हैं इनएक्सपेंसिव, दैट वी कैन सी। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ये लोग मिसलीडिंग दे देते हैं कि हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ख़रीदने में कुछ निकलता नहीं है, तो हम लोग उस बेसिस पे भी जो है एक बिजनेसमैन पे केस कर सकते हैं। गिविंग इनकरेक्टेड और डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट्स, दिस विल शील्ड कंज्यूमर फॉर गेटिंग एक्सप्लॉयटेड। नेक्स्ट इज एजुकेशन कंज्यूमर्स अबाउट द बेसिक राइट्स, जो उनके 5 राइट होते हैं जो मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ उसके बारे में उनको एजुकेट करना, ठीक है, जो उनको नहीं पता है, इसलिए बना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, टू सिक्योर देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट। नहीं, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जो है, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंस है बिज़नेस के लिए, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिज़नेस, ठीक है, लिबराइजेशन जो हुआ था, खुली छूट दे दी गई थी इंडियन सप्लायर्स, इंडियन शॉपकीपर्स की को कि जाओ अपनी गुड्स जो है जाके बेचो, ठीक है, उसमें जो भी उन लोग को एक कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ा था, ठीक है, इंटरनल यानी अपनी कंट्री में नहीं बल्कि बाहर के इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स भी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन भी हो गया था उस समय तक। इन द रेस ऑफ कॉम्पिटिशन द बिजनेस मैन कैन विन एंड कैप्चर बिग शेयर इन द मार्केट ओनली व्हेन दे आर एबल टू सेटिस्फाई इट्स कस्टमर, ठीक है, तो अब लॉन्ग टर्म जो है बिजनेस में रहने के लिए क्या ज़रूरी है, टू सेटिस्फाई इट्स कस्टमर बाय डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, ठीक है, जो चीज़ कस्टमर के हित में होगी वो बिजनेस देर तक टिकेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है, जो बिज़नेस है वो एक सोसाइटी में तो इस्टेब्लिश होता है, एक ग्रुप्स होते हैं, कस्टमर्स के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो बिजनेसमैन को ये क्या करना चाहिए, क्वालिटी गुड प्रोवाइड करना चाहिए इस रीज़नेबल प्राइस पे, ठीक है। मोरल एथिक एंड जस्टिफिकेशन, ठीक है, एथिकल काम होना चाहिए, जो है फ्रॉड नहीं होना चाहिए। The ethics or moral value practiced by the business adds glory to business. In today's environment, business without ethical value is not more than a criminal activity. ठीक है, अगर आपका business without ethical value होगा तो इसको हम criminal activity भी consider करेंगे। अब देखिए, ये जो है पेपर में हमेशा आता है कंज्यूमर राइट्स, ये 6 मार्क्स में आता है और हमेशा आता है, मान के चलिए। पहले देखिए राइट टू सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सबकी सेफ्टी। कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैज़ार्डियस मतलब जानलेवा है एक की ज़िंदगी के लिए, ठीक है, वो प्रोडक्ट जो ये लोग प्रोड्यूस करते हैं और एक सही नॉर्म्स के जरिए नहीं प्रोड्यूस करते हैं, चीज़ों को ध्यान में रख के, जिससे कस्टमर को आगे इंजरी हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ पे कंज्यूमर जो है केस कर सकता है, उसी को हम कहते हैं राइट टू सेफ्टी। दस कंज्यूमर्स आर एजुकेटेड, अगर वो एजुकेटेड होंगे
तो उनको कोई भी चीज़ खरीदने से पहले पता होगा कि जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उस पर ISI मार्क होता है, एग्रीकल्चर पे प्रोडक्ट पे AG मार्क होता है, ये सब होते हैं, ठीक है। राइट टू बी इन्फॉर्म, द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। उसको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो प्रोडक्ट वो ख़रीद रहा है, ठीक है, जो इंग्रेडिएंट वो ख़रीद रहा है, उसकी प्राइस, क्वांटिटी, डायरेक्शन फॉर यूज़ सब मेंशन होना चाहिए उस प्रोडक्ट पे। इट इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया रिक्वायर्स द मैन्युफैक्चरर टू प्रोवाइड सच इन्फॉर्मेशन ऑन द पैकेज ऑफ द लेबल। इंडियन लॉ ये कहता है कि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देना ही देना है पैकेज पे, ठीक है। तो 2 राइट्स हो गए हमारे, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म। मैं क्लियर कर दे रही हूँ अगर आप ना देखें। अगले पे आते हैं, राइट टू चूज़, द कंज्यूमर हैज़ द फ्रीडम टू चूज़ फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। चूज़ मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट में कस्टमर को चूज़ करने की फ्रीडम होनी चाहिए, ये नहीं कि नहीं तुम्हें वही गुड खरीदना है, ठीक है। दिस implies that the marketer should offer a wide variety of products in terms of क्वालिटी, ब्रांड, प्राइस, साइज। क्वालिटी, ब्रांड, प्राइस, साइज के बेस्ड पे अलग अलग प्रोडक्ट होने चाहिए मार्केट में। एंड अलाउ द कंज्यूमर टू मेक अ चॉइस अमंग दीज, ठीक है। और कंज्यूमर का अलाउ होना चाहिए कि आप इसमें से कोई चूज़ कर लो, जैसे वैरायटी ऑफ फ़ोन्स आ गए हैं आजकल, ठीक है। तो उसमें से हम चूज़ कर सकते हैं ना, हमें कौन सा लेना है कौन सा नहीं, वही होती है हमारी राइट टू चूज़। राइट टू बी हर्ड, the consumer has a right to file a complaint to be heard in case of dissatisfaction with the good। कंज्यूमर को अगर कोई गुड से डिससेटिस्फैक्शन है तो वो केस जो है डाल सकता है, ठीक है, ठीक, केस कर सकता है या कॉल कर सकता है। कहाँ पे? बिजनेस के थ्रू कंज्यूमर सर्विस और ग्रीवियंस सेल बनाए गए हैं वहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं कि लोगों के प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। नेक्स्ट है राइट टू सीक रिट्रेसल, ठीक है। अपनी कंप्लेंट का पेबैक हमें रिसीव होना चाहिए, ठीक है। हम लोग अपनी रिलीफ के लिए केस कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट सर्विसेज पे अगर वो हमें एक्सपेक्टेशन पे ना पहुँचे तो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ रिलीफ्स, ठीक है। कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दो या डिफेक्ट है उसको फ्री में रिमूव कर दो ऐसे, या फिर पैसा वापस कर दो अगर उसको कोई नुकसान हो गया, इंजरी हो गई कंज्यूमर को। नेक्स्ट पे आते हैं राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। कंज्यूमर को एटलीस्ट तो एजुकेट होना चाहिए। कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू एक्वायर नॉलेज और वेल इन्फॉर्म होना चाहिए। उसको अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसके राइट्स क्या हैं, उसको कब क्या करना है, रिलीफ क्या मिलते हैं उसको, मतलब एग्जम्पशंस क्या मिलते हैं। मैनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड सम एनलाइटेड बिजनेस आर टेकिंग एक्टिव पार्ट इन एजुकेटिंग कंज्यूमर। और इस कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए वर्क कर रहे हैं। द कंज्यूमर एम्पावर्स देम टू फाइट अगेंस्ट द अनस्कल्पचर्स एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस दैट आर अडॉप्टेड बाय द सेलर, ठीक है। वो क्या सिखाते हैं कि जो लोगों के अगेंस्ट गलत एक्सप्लॉयटेटिव अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होते हैं उसके सामने एक्ट करो, ठीक है। द बॉक्स ऑन इज टेलीटरी शुड हाउ चले छोड़िए, तो ये एक एग्जाम्पल था लेकिन आधा ही लिखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग ने देखा इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस, स्कोप ऑफ बिजनेस एंड 5 राइट्स। ओके, ये था दोस्तों पार्ट 1। पार्ट 2 में हम रिड्रेसल के बारे में बताएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।